Hey everyone, we are going to start chapter 12 of 8th class. So firstly, let's recall some properties which will be used in this chapter. So first property is a to the power m into a to the power n, or a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. Here a may be any number. Any number means positive or negative number. So a, but the power of a in these two terms are different. First is m and second is n. But the base is same, which is a. So whenever it happens, we will simply add the powers. So m plus n. Here is an example of first property. So 2 raised to power 3 into 2 raised to power 1 is equal to, now we will use this property, we will add the powers 2 raised to power 3 plus 1, okay, and it will become 3 plus 1 is equal to 4. So 2 raised to power 4. Next is second property, a raised to power m divided by a raised to power n, means just opposite from the first one. First one was about multiplying and this one is about division. So a is again any number which may be positive or negative. We can also write it as in this form, and here base is same, means a is same number but powers are different, and here in between these two terms the sign is of division, so we will subtract the powers. So m minus n, a to the power m minus n. Here is an example, 2 raised to power 3 divided by 2 raised to power 1. Now base is same, sign of division is here, so we will subtract the power. So 3 minus 1, 2 raised to power 2. Next is 1 upon a raised to power m. A again is any number which may be positive or negative. So how can we change this? We can write it as in this form. If we want to write it above, then its power will get negative. Example is 1 upon 2 raised to power 2, and it will be equal to 2 raised to power minus 2. Whenever you are given with this type of example, and you can change this in this form, okay. Next is a upon b raised to power minus n. Again power is negative, and if you want to make this power positive, then you need to reciprocate a upon b. Reciprocal of a upon b is equal to b upon a, and power will get positive. Example is 2 upon 3 raised to power minus 9. This bracket shows that this power is both on 2 and 3. So we will take the reciprocal of 2 upon 3, which is 3 upon 2, and power will get positive. Next is, if we have two powers with having same number as base, so a to the power m multiplied by n, so we can solve it as a raised to power m into n. Example is 2 raised to power 3 bracket power 2. So this means two powers are here, so we will multiply these two powers. Next is sixth property, minus 1 raised to power odd number. Odd number are 1, 3, 5, 7 and so on. So if minus 1 has an power which is odd,
we can write it as -1. Simply -1, and we will forget the power. Now let us see how will this result occur. So let us take an example and put the value of an odd number. So we take 3 here. So we will multiply -1 3 times. -1 into -1 into -1. What we will get is minus minus plus, and plus minus minus. So -1 is the result. And next property is again related to the sixth property. If the power is even means 2, 4, 6, 8, then the result is +1. So example is -1 raised to power 4. So if we multiply this 4 times, minus minus plus, again minus minus plus, so plus plus plus, so result is positive. Next is, if we have any number whose power is 0, then result is always 1. So 2 raised to power 0 is equal to 1. Next, last property is a upon b raised to power 0. So again here we apply the same eighth property. Anything which has power 0 is equal to 1. So a upon b can be this number 2 upon 3. It is an example of this property. So 2 upon 3 raised to power 0 is equal to 1. Let's start the exercise now. Exercise 12.1. Question number first, evaluate. So first part is 3 raised to power -2. Power is negative, so we need to find the simple value of this exponential term. So we will use the property a to the power -m is equal to 1 upon a to the power m. Now we will apply this property here in the question. So 3 raised to power -2 will be equal to 1 upon 3 raised to power 2. Here the power is now positive. So we can write this term as 1 upon 3 into 3. 3 raised to power 2 means 3. We will multiply 3 twice. So 3 into 3, 3 3 ja 9. So 1 upon 9. Next is again same as first one, but the difference is here a negative number is taken instead of a positive number. So power is again -2. So again use that property which we used in the previous question. So we will get 1 upon -4 raised to power 2. In these type of questions we need to make the power positive. So we will take the reciprocal of the number. This is also called reciprocal. 4 -4 upon 1 का reciprocal क्या हो सकता है 1 upon 4. So this is reciprocal and power will get positive. Okay, so power positive हो गई. उसके बाद हमने पावर को ओपन कर लिया. नंबर को पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, -4 इंटू -4, क्योंकि पावर क्या है ट्वाइस है. ठीक है, तो -4 into -4, 4 4 the 16, minus minus plus, so we will get 1 over 16 या 1 upon 16. Next is third part, 1 upon 2 raised to power -5. So it is a next part is 1 over 2 raised to power -5. So we can use this property as well as a over b minus n is equal to b over a power n. We can use both these properties. So let us discuss with the first property. So this question, power is for both the terms, for a numerator and also the denominator. तो हम इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर लिख सकते हैं -5 को. तो -5 1 की पावर हो जाएगी. तो 1 की पावर नेगेटिव है और 2 की पावर भी नेगेटिव है. हम क्या करते हैं, हम फर्स्टली
पावर को पॉजिटिव करते हैं तो हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1 नीचे चला जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगा, इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, इसको इग्नोर करें। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स आ गया। वैसे ही 1, तो 1 को कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई करो, द एंड रिजल्ट विल बी 1। लेकिन यहाँ पे 2 को 5 टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा। 16/1 को हम 16 भी लिख सकते हैं। Another method to do this same question is using this property. So it is also in the form of this one. So we will simply use this property and we will reciprocate this term 1/2 and its reciprocal will be 2/1 and power will get positive. So we will get the same result with this method also. Next question is simplify and express the result in power notation with a positive exponent. We need to simplify the terms and express the result in positive power like this. Here is power positive, so positive exponential just means this. First is -4 raised to power 5 divided by -4 raised to power 8. So we can use the property this one. So powers will get subtracted whenever we have a division, sign of division in between two terms. So we will apply this here. But remember, your result should be in positive exponential. -4 raised to power 5 minus 8, इन पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 5 - 8, 8 - 5 कितना होता है 3, और बड़े डिजिट के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव साइन आ गया। अब हमने पावर क्योंकि पॉजिटिव करनी है तो हम इसको कैसे करेंगे, जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है, और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि 1 है, 1 की पावर तो हम कुछ भी लिखें 1 ही आता है, तो 1 की पावर 3 हम लिख सकते हैं और 4 लिख सकते हैं साथ में, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी है इसीलिए हमने नेगेटिव साइन भी यहाँ पे प्लेस कर लिया। नेक्स्ट इज 1/2 raised to power 3 whole raised to power 2. So this 2 is both power of both numerator and denominator, but 3 is only the power of denominator. So how will we solve this? This 2 is power of both the terms. So firstly we will split this power to both the terms. So 1 raised to power 2 and 2 raised to power 3 into 2. So 1 into 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 आ गया है यहाँ पे। लेकिन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक कि a raised to power m into n is equal to m into n, ठीक है। a raised to power m into n. सो यहाँ पे 3 और 2 क्या है, पावर्स हैं, तो ये हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 2 जा 6. So 1 we can write it as 1/2 raised to power 6, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लिखो तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड पार्ट है -3 raised to power 4 into 5/3 raised to power 4. सो अभी हमने इनकी वैल्यू सिंपल फॉर्म में कैलकुलेट करनी है और एक्सपोनेंश जो है वो पॉजिटिव लाना है एंड में। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो यहाँ पे फर्स्टली तो हम इस पावर को दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे, 5 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। अब इसमें देखो क्योंकि -3 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। हम इनको सेम कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से -1 -3 में क्या फैक्टर छिपा हुआ है, -1 है ना, उसको हम अलग से लिख लें, है ना। उसकी पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 4 है, तो इसकी भी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो -1 raised to power 4 into 3 raised to power 4
ठीक है, इसको हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये यहाँ पे दोनों 3 सेम नंबर्स बन जाएं, ठीक है, ताकि हम फिर बाद में क्या कर सकें, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। अब हमने क्योंकि पढ़ा था कि इवन पावर होती है तो 1 आता है, ठीक है, फिर भी कैलकुलेट कर लिया है, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो रहे हैं ना, 3⁴ और 3⁴, तो जब भी डिवाइड में होते हैं तो क्या होते हैं, पावर्स माइनस हो जाते हैं, तो 4 - 4 पावर क्या आ जाएगी इसकी, 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि a⁴ 0 हो तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 × 1 1, लेकिन 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिलता है ना हमें, इसीलिए 5⁴ इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻10, it is in bracket and then multiplied by 3⁻5. So firstly apply the property here and then again apply the property with this term. So firstly हम divide वाली property apply करेंगे, जब divide होता है बीच में बेस सेम होते हैं तो क्या होती हैं, पावर्स माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो -7 माइनस, लेकिन 10 के साथ भी माइनस है तो माइनस का आपने ध्यान रखना है, तो ये आ जाएगा आपका -10, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अगले स्टेप में हम यही करेंगे। नेक्स्ट में 10 प्लस का है और 7 माइनस का, सो 10 - 7 या प्लस माइनस माइनस 10 - 7 3, बड़े वाले के साथ पॉजिटिव है इसीलिए 3 भी पॉजिटिव का आया, ठीक है, इंटू 3⁻5। नाउ अब साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, तो 3⁻3 प्लस -5, सो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे ऐड ही किया हमने, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कैसे कर दिया, ये बाद में हुआ जब ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुए, तो प्लस माइनस माइनस 3 - 5 इज इक्वल टू -2, तो पावर क्या बन गई, -2, लेकिन हमें पावर कैसी चाहिए, पॉजिटिव। सो अब हम अगेन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जिसमें रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/3⁻2 बन जाएगा। फिर 1 की पावर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, 1 ही रहता है, तो 1/3 होल पावर 2। नेक्स्ट इज 2⁻³ into -7⁻³ In this case both the numbers are different but the powers are same, so we can write power in this form, okay, क्योंकि पावर तो सेम है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख के इन टर्म्स को, पावर को ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। सो -3 इस पूरी टर्म की पावर बन गई, ठीक है। अब 2 × -7 क्या बन गया, -14, ठीक है, -14⁻3, क्योंकि रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव पावर में चाहिए इसीलिए हमने इसको रेसिप्रोकेट किया, तो 1/14⁻³ आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/14⁻3, क्योंकि 1 की पावर तो क्या होती है, 1 की पावर कुछ भी करो आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3⁻0 + 4⁻1 इंटू 2⁻2। सो हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ वी स्टडीड। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके, 4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/4, और ये हो गई इसकी पावर पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि 1 है तो यहाँ पे 1 ही है ना, 1 ही है, इसका मतलब नहीं लिखा हुआ है, तो 2⁻2 इंटू 2 × 2, ठीक है। अब ये वाली टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी, यहाँ पे 1/1 है तो 1 और 4 का एल्शियम क्या आएगा, 4, 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4, ठीक है, तो 4
और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, सो 4 + 1 × 4, 4 + 1 आएगा 5/4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2⁻⁻1 × 4⁻⁻1 होल डिवाइडेड बाय 2⁻²। सभी पावर्स नेगेटिव हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पावर्स को पॉजिटिव करेंगे, लेकिन है सबकी फर्स्ट 2 टर्म्स की पावर 1 है और अगले की 2 है, ठीक है, लेकिन है नेगेटिव, तो हमने इनको प्लस पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लिया, 1/2 इसकी पावर 1 ही है इसका मतलब, ठीक है, और इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2⁻²। तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1 1 जा 1 एंड 2 4 जा 8, सो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2⁻² को हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, ठीक है, ओपन कर लिया इसको हमने, तो ये कितना आ गया 4, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। आपने 7th में पढ़ा था, जब भी आपको इस तरह की टर्म दे रखी हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, और इस नंबर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो 1/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 4/1 से 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो 1 × 1 1, 2 1 जा 2, so 1/2 is the right answer. Next is third, -1/2 power -2 plus 1/3 power -2 and 1/4 power -2। यहाँ पे पावर सेम है, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि सभी की पावर ब्रैकेट के बाहर लिख दी, ठीक है, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी पावर्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करते हैं जब भी हम पावर को, तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 और पावर हो गई पॉजिटिव। वैसे ही इनमें भी 1/3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 3/1 एंड पावर विल गेट पॉजिटिव, ठीक है। अगेन 1/4 का 4/1 एंड पावर विल गेट पॉजिटिव, ठीक है। अब अपॉन में 1 है, तो इसको हम ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। 2⁻² प्लस 3⁻² प्लस 4⁻², क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर लो आप, वो तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हमने इन पावर्स को ओपन कर लिया, सो 2⁻² को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, 3⁻² को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को कर लेंगे ओपन, तो ये बन जाएगा 2 × 2, ये बन जाएगा 3 × 3, बीच में प्लस है डोंट फॉरगेट, 4 × 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 29। नेक्स्ट इज 3⁻1 प्लस 4⁻1 प्लस 5⁻1 0। वैसे तो हमें क्वेश्चन को देख के ही समझ लेना चाहिए कि पूरे की पावर क्या है, 0, तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1, लेकिन हम इसको पहले सिंपल कर लेंगे, ठीक है। तो ये पावर्स क्या हैं, सारी नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, क्योंकि 1 ही है तो हम पावर नहीं लिख रहे हैं अब, ठीक है। इसका 1/3 का मतलब ये है कि 1/3⁻1, ठीक है। तो अगर पावर 1 हो उसको हम ना लिखें तब भी वो नंबर सिंपली रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने एलसीएम ले लिया 3 4 5 का, वो आएगा 60, ठीक है। अब 3 से 3 20 जा 60, 21 जा 24, 15 जा 60, 15 1 जा 15, ठीक है। 5 12 जा 60, सो 12 1 जा 12, हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा 47/60, लेकिन पावर क्या है 0। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी ना A/B कि अगर पावर 0 हो तो क्या होता है, वो 1, ठीक है। तो ये 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। लास्ट पार्ट आप खुद ट्राई करें, आई विल एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट वीडियो।